آج کی اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب گلستان ادب کے حصہ نظم کے سبق نمبر 16 کا، جس کا عنوان ہے نظم۔ اور سبق نظم کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے کے اندر ہم نے نظم کیا ہے اور کتنی قسمیں نظم کی ہوتی ہیں، کس طرح سے نظم لکھی جاتی ہے، تعریف نظم کی، ان کی سب چیزوں کے بارے میں نے بات کی تھی، معلومات حاصل کی تھی نظم کے بارے میں۔ دوسرے حصے کے اندر ہم نے اکبر الہ آبادی کا تعارف حاصل کیا تھا۔ اکبر الہ آبادی کی ایک نظم ہمارے نصاب میں دے رکھی ہے، مستقبل، تو اکبر الہ آبادی کی زندگی کے حوالے سے بات کی۔ اور تیسرے حصے کے اندر ہم نے نظم مستقبل کا مطالعہ کیا تھا۔ چوتھا حصہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس حصے کے اندر ہم نظم مستقبل میں دیے گئے سوالوں کے جوابات حاصل کریں گے، اور مختصر تعارف پھر دوبارہ سے اکبر الہ آبادی کا یہاں پر ہے، اور ان کے نظریات کچھ دے رکھے ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہاں پر ان کو بہت جلدی سے ہمیں آگے بڑھ جانا ہے، تو وہ تعارف ہم حاصل کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں بچوں سبق کا چوتھا حصہ، مشقی سوالات۔ مشقی سوالات سبق مستقبل سے یہاں پر ہے۔ مستقبل کیا ہے؟ مستقبل اکبر الہ آبادی کی نظم ہے، اور اس نظم کے اندر اکبر الہ آبادی نے مستقبل میں پیشن گوئیاں کی ہیں، مستقبل کی آنے والے جو چیزیں ہیں، ہمارے سامنے کیا کیا بدلاؤ ہونے والے ہیں، کس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے، ان کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ انہوں نے کیسے بتایا؟ انہوں نے اپنے وقت کے حالات سے اندازہ لگایا کہ آگے کیا ہوگا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہوا کی تحریک موسم کی تبدیلی کا اندازہ دیتی ہے۔ جس طرح سے ہوا کی تحریک سے، ہوا کے ٹھنڈے یا گرم ہونے سے، چلنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیسا موسم رہے گا، اسی طرح سے اکبر الہ آبادی اس وقت ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے بوڑھے اور بزرگوں کی، بچوں کے حالات دیکھ کے، ان کی مغربی تہذیب کی طرف ان کی دلچسپی دیکھ کے، اس طرف توجہ دیکھ کے انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا اگر یہ اسی طرح سے مغربی کی تقلید کرتے رہے، مغربی زبانوں کو، مغربی پہناووں کو، مغربی کھان پین کو توجہ دیتے رہے، وہی پسندیدہ اپنے کو آپ کو بناتے رہے، تو پھر آنے والا زمانہ کس طرح کا ہوگا؟ آنے والے زمانے میں یہ لوگ ہماری تہذیبیں بھول جائیں گے، اور وہی تہذیبوں کو اپنا سرمایہ مانیں گے، انہی تہذیبوں کو اپنا سب کچھ مانیں گے۔ یہ اندازے کو آپ نے نظم مستقبل کے اندر پیش کیا ہے، جو بہت سٹیک اندازہ ہے بچوں۔ بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں اور بہت ساری تبدیلیاں آنے والی ہیں، جو اکبر الہ آبادی نے اپنی نظم مستقبل کے اندر بتائی ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سبق کا چوتھا حصہ۔ دیکھیے یہاں پر غور کرنے والی کچھ باتیں آپ کو دے رکھی ہیں۔ ہم پہلے حصے کے اندر اور دوسرے حصے میں ان چیزوں کے مطالعہ کر چکے ہیں، تیسرے میں بھی میں نے آپ کو یہ چیزیں سمجھائی تھی، تو آپ کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ کتنا آپ نے پڑھا ہے، کتنا آپ کے ذہن میں آئی ہیں چیزیں۔ غور کرنے والی باتوں میں پہلا نقطہ ہے کہ اکبر الہ آبادی اس زمانے سے تعلق رکھ رہے ہیں جبکہ ہندوستان میں سیاسی، سماجی اور تہذیبی سطح پر بہت سی تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ ان کے دورس نگاہوں نے اس بات کا اندازہ کر لیا تھا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو مستقبل میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں۔ وہ ان تبدیلیوں سے خوش نہیں تھے۔ اکبر الہ آبادی میں نے آپ کو بتایا کہ نظر رکھے ہوئے تھے، وہ دیکھ رہے تھے حالات میں کس طرح کے بدلاؤ آ رہے ہیں، اندھی تقلید مغربی ملکوں کی جا رہی ہے، مغربی تہذیبوں کی جا رہی ہے، مغربی مذاہب کو اچھا مانا جا رہا ہے، ان کے اوپر ان کی سخت نظر تھی، وہ دیکھ رہے تھے، اور وہاں کس طرح کی تبدیلیاں آ سکتی ہیں اس تقلید کی وجہ سے، ان تہذیبوں کی، ان مذاہبوں کی پیروی کرنے کی وجہ سے جو تبدیلیاں آ سکتی ہیں، وہ بھی ان کو اندازہ ہو رہا تھا، اور انہوں نے اپنی نظم کے ذریعے اس کو ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے بتا دیا کہ اگر اسی طرح سے چلتی رہیں پیرویاں ان مذہبوں کی، ان تہذیبوں کی، تو ہمارا مستقبل کس طرح کا ہوگا، اور وہ ان تبدیلیوں سے خوش نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے ان تبدیلیوں کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا۔ آگے اگلا نقطہ ہے آپ کے لیے کہ اکبر الہ آبادی ان لوگوں میں تھے جو مغربی تہذیب کی اندھی تقلید کے سخت مخالف تھے۔ تقلید، پیروی کرنا، نقل کرنا، پیچھا کرنا، اس کی دیکھا دیکھی کرنا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس دور کے نوجوان اور اس دور کے لوگ، تقریباً سبھی طرح کے لوگ ان امور کی پیروی کر رہے تھے، ان مذاہب کی پیروی کر رہے تھے،
उस तहजीब की पैरवी कर रहे थे जिससे हमें बिल्कुल भी वाकिफत नहीं थी, बिल्कुल भी हम नहीं जानते थे। बस उनकी चमक दमक देखकर, उसका रहन सहन का ढंग देखकर, क्योंकि यहां पर अंग्रेज थे, उनका अंदाज देखकर हम उनकी तरफ रागिब होते चले गए, उन्हें अपना पसंदीदा बनाने के शक्ल के अंदर आगे बढ़ते चले गए, जबकि वो बर्बादी के बाइस थी। बाद में उनकी तहजीबें, उनके मजहब के अकीदों की वजह से उनके मुआशरे में बड़े बड़े बदलाव हुए। वो खुद अपनी मगरिबी मुल्क के जो लोग हैं वो खुद अपनी तहजीब से परेशान हैं कि इस तरह की तहजीब हमारी है, वो हमारी तहजीब की तरफ देखते हैं। लेकिन जो हमारे पैरवी करने वाले हैं, जो नकल करने वाले हैं, उन्होंने इस चीज़ को देखा नहीं। वो तो बस जैसे मगरिबी मुल्क कर रहे हैं उन्हीं की नकल करने के लिए, उन्हीं के अंदाज में रहने सहने की उन्होंने कोशिश की। तो फिर अकबर इलाहाबादी देख रहे थे इन सब चीज़ों को, तकलीद के खिलाफ थे, अंधी तकलीद के खिलाफ थे। तो उनकी ज़रीफ़ाना शायरी और तंज़ो मज़ा से भरपूर है। उनकी ज़रीफ़ाना मतलब हंसी मजाक वाली, ज़र्फ़ वाली। उन्होंने अपनी नज़मों को समाजी इस्लाह के मौसर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और मगरिबी तहजीब की अंधी तकलीद पर पुरवार हुए। पुरवार मतलब पूरे जोर से हमले किए, कई तरह से हमले किए उन्होंने, कई नज़में लिखी उन्होंने कि सीधे सीधे निशाना बनाया है मजहबी मगरिबी तहजीबों को, उनके मजहबों को, और उनकी जो मानते थे अकीदे, उन अकीदों पर आपने सीधे सीधे हमले किए हैं, पूरे ज़ोर से वार किए हैं। और वो मुआशरे की खामियों को और उनके नताइज को बड़े दिलचस्प अंदाज में उभारते हैं, क्योंकि तंज के शायर थे वो, तंज़ो मज़ाक के शायर थे। और तंज़ो मज़ाक में यही काम है कि कमियों को निकालना, उनको उभारना, इस्लाह का कोशिश करना और लोगों को बताना कि आप किन कमियों की तरफ जा रहे हो, क्या आपके अंदर कमियां हैं, किस तरह से आप अपने अंदर सुधार कर सकते हो। तो इसी के ज़रिए आपने, तंज़ो मज़ाक के शायर थे, मुआशरे की खामियों को और उनके नताइज को बड़े दिलचस्प अंदाज में, हंसी वाले अंदाज में, ज़रीफ़ाना अंदाज में उभारते हैं। इस नज़्म में अकबर ने उन बातों की पेशन गोई की है जिनका उन्हें अंदेशा था। पेशन गोई, आगे की बात बता देना, आगे क्या होने वाला है। तो जानकारी नहीं थी उनको, कोई इल्म नहीं था, कोई तारों का, कोई सितारों का उनको इल्म नहीं था, लेकिन उस वक्त के माहौल से उन्होंने अंदाजे लगाए। आज हमें भी पता चल जाता है, हम भी अगर आगे की सोचें कि जिस तरह के माहौल चल रहे हैं तो आगे क्या होने वाला है। आज छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के शौकीन बन रहे हैं, मोबाइलों के और इंटरनेट वगैरह के पीछे भागते हैं। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस तरह की पीढ़ी जो 20 साल बाद आएगी, 25 साल बाद ये बच्चे जब बड़े होंगे तब उस वक्त क्या हाल रहेंगे, किस तरह की तब्दीलियां ये हमारे मुआशरे के अंदर पैदा कर देंगे। वो थोड़ी बातें हमें भी समझ में आ जाती हैं। तो अकबर इलाहाबादी ने इसी तरह से जो उनके मुआशरे में उस वक्त हो रहा था, जो लोगों की तरफ तवज्जो जा रही थी जिन चीज़ों की तरफ, उनसे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि इसी तरह का माहौल रहा तो 8 से 50 साल बाद ये चीज़ें आम हो जाएंगी, ये चीज़ें खुलेआम हो जाएंगी, ये चीज़ें करने लग जाएंगे लोग, और ये चीज़ें जो आज चल रही हैं वो उस वक्त ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह से उन्होंने पेशन गोइयाँ की हैं। तो सवाल जवाब की तरफ आते हैं। सवालात के अंदर आपके लिए पहला सवाल दे रखा है कि अकबर इलाहाबादी ने किन बातों की पेशन गोई की थी। अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़्म मुस्तकबिल में पेशन गोइयाँ की हैं, बहुत सारी, कई पेशन गोइयाँ की हैं। कुछ पेशन गोइयाँ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए इसका जवाब सवाल का कि अकबर इलाहाबादी ने मुस्तकबिल में होने वाले मुख्तलिफ तब्दीलियों की पेशन गोई की है, जो हस्ब झेल है। पहली आपने की थी कि औरतों के पर्दे ख़त्म हो जाएंगे। पर्दों से माने यहाँ पर हया से लगा सकते हैं कि हया आंखों की ख़त्म हो जाती है। दूसरी पेशन गोई है, खुद को मजहब और तहजीब को छोड़ के मगरिबी तहजीब को अपना लिया जाएगा। मगरिबी जो कल्चर है, वहाँ की जो तहजीब है, उसको अपनाने की कोशिश की जाएगी और उसे अपनाने में फ़ख्र भी महसूस किया जाएगा। उसको अपनाने वाला जेंटलमैन कहलाएगा, स्टैंडर्ड कहलाएगा वो। और जो उस तकलीद नहीं करेगा, उस कल्चर को, उस तहजीब को अपनाने की कोशिश नहीं करेगा, तो उसको पिछले ज़माने का बोला जाएगा, उसको पुराना बोला जाएगा, उसको गुजरे हुए ज़माने का बोला जाएगा। तो खुद के मज़हब को भी भुला देंगे हम और हमारी तहजीब को भी छोड़ देंगे, और इसके बदले में हम मगरिबी मज़हब को अच्छा समझेंगे, मगरिब की तहजीब को अच्छा समझेंगे, उसी को अपने अंदर ज़माने की जज्ब करने की
कोशिश करेंगे। अकबर इलाहाबादी की ये पेशन गोई थी और वो आज सच भी साबित हो रही है। आप देख रहे हो किस तरह के हालात हो रहे हैं, किस तरह के चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। वो चीज़ें जो मगरबी मज़हब के अंदर आम थी, आज हमारी तहजीब के अंदर भी वो आ गई हैं। वहाँ से उठी, वहाँ ख़त्म भी हो रही हैं और यहाँ पर हम उन चीज़ों को ले रहे हैं, उन चीज़ों को अपने मुआशरे के अंदर शामिल करते जा रहे हैं। तीसरा है मज़हब और अकाईद पर ज़वाल आएगा। मज़हब पे भी ज़वाल आएगा और अकाईद पर भी ज़वाल आएगा। जो हमारे अकीदे हैं उनको तहस नहस कर दिया जाएगा, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। नए अकीदे बनेंगे, नए फ़िरक़े बनेंगे और उनके अकीदे अलग अलग होंगे। वो कैसे होंगे? वही मगरिब की तकलीद की वजह से, यूरोप की हमारी तहजीब में दखल की वजह से। वो जो उनकी सोच है वो हमारे ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। आज आप देखिए हम कितने फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, कितने हिस्सों में बटे हुए हैं। कोई हमारा पूछने वाला नहीं है, कोई हमारा बोलने वाला नहीं है। आपस में ही हम लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। मज़हब की पैरवी करने वाला कोई नहीं है, सही रास्ते पर चलाने वाला कोई नहीं है। जिसके जो लगता है मज़हब को उसी अंदाज में वो बयान करने लगता है, जैसा वो समझता है वैसा ही मज़हब बनाने की कोशिश करता है। असल मज़हब क्या है उसको हमने भुला दिया है। किस तरह से हमें अपने मज़हब का एहतराम करना चाहिए, किस तरह से हमें दूसरे के मज़हब का एहतराम करना चाहिए, वो सब चीज़ें हम भुला चुके हैं, वो सब चीज़ें हम छोड़ चुके हैं जो उस वक्त थी अकबर इलाहाबादी के ज़माने में। आज उस तरह के माहौल नहीं है, तो मज़हब और अकाईद पर ज़वाल आएगा। चौथा है कि कौम और मिल्लत फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी। आज हम फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, कौम और मिल्लत। कहाँ हम एक दूसरे के साथ हैं, कहाँ हम एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलते हैं। हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, टांग खींच के चलते हैं। तो वो कहते हैं कि कौम और मिल्लत फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी और फिर वो कहते हैं कि मालो ज़र की परस्तिश होगी। मालो ज़र की परस्तिश मतलब पूजा। मालो ज़र की पूजा से मतलब क्या है कि जो अमीर है उसकी कद्र की जाएगी, पैसे को देख के उसका रुतबा बताया जाएगा। जितना ज़्यादा अमीर होगा उसको उतना ही बड़ा माना जाएगा, उसकी उतनी ही तारीफ़ें की जाएंगी। चाहे उसने वो पैसा चोरी से कमाया हो, वो लुटेरा हो, वो डकैत हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी, सिर्फ मालो ज़र की परस्तिश की जाएगी। और आज ऐसा हो रहा है। मुस्तकबिल के अंदर नज़्म में उन्होंने कहा था अकबर इलाहाबादी ने कि मालो ज़र को सबसे बड़ा माना जाएगा। ऐसा कि ऐसा ही हो रहा है बिल्कुल। छठा है मगरिबी ज़ुबानों के सामने मुकामी ज़बानों और उन्हें बोलने वालों को हकीर समझा जाएगा। वो कहते थे कि मगरिबी जो लुगातें हैं वो हमारी ज़ुबान से खलत मलत हो जाएंगी, हमारी इस्तिलाहों से काम नहीं बनने वाला, हमारी ज़ुबानें ख़त्म कर दी जाएंगी। आज आप देखिए कि हमारी ज़ुबानें कहाँ रह गई, एक छोटे तबके तक सिमट के रह गई हैं हमारी ज़ुबानें, और उसके अंदर भी दूसरी ज़ुबानों के लफ्ज़ बहुत सारे आ गए हैं, अल्फाज जोड़ लिए गए हैं अलग अलग तरीके के उसके अंदर। वो पेशन गोई की थी उन्होंने उस वक्त के हालात देखकर, और वो सही साबित होती जा रही है। सातवां देखिए कि मगरिबी तहजीब की अंधी तकलीद की जाएगी। अंधी तकलीद यानी, अंधी तकलीद होती है बच्चों अंधाधुन पैरवी करना बगैर सोचे समझे, यानी कि बगैर अकल लगाए नकल करना। बंदर की कहानी पढ़ी है ना आपने, उस तरह से शेप बनाता और अपने गाल काट लेता है, वो अंधी तकलीद है। तो अंधी तकलीद की जाएगी। जो चीजें यहां के हिसाब से नहीं है वो वहां के हिसाब से है, मगरिब के हिसाब से है, उनको यहां के मुताबिक ढाला जाएगा, यहां पर उनको आजमाया जाएगा, तो वो चीजें तो फेल होंगी, वो चीजें कहां से आगे बढ़ने लायक होंगी। तो मगरिबी तहजीब की अंधी तकलीद की जाएगी। मुस्तकबिल में शराफत का मेयार मगरिबी तकलीद और मालो ज़र पर मुबनी होगा। शरीफ किसको समझा जाएगा? जिसके पास पैसा है। अभी मैंने आपको बताया था कि मालो ज़र की परस्तिश की जाएगी, तो शराफत का मेयार भी बदल जाएगा। शरीफ वो शरीफ नहीं है कि जो अच्छे काम कर रहा है, जो ईमानदार है, जो भलाई कर रहा है, हुस्न मोहब्बत के साथ लोगों के साथ हुस्न इखलाक से रह रहा है, अच्छा बर्ताव कर रहा है, वो शरीफ नहीं रह जाएगा। शरीफ कौन रह जाएगा? कि जिसके पास माल ज़र हो, दौलत हो, जो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता हो, जो यूरोपीय ज़ुबानें बहुत अच्छी बोलता हो, कई तरह की ज़ुबानों के ऊपर उसको महारत हासिल हो, चाहे वो चोरी कर रहा हो, डकैती कर रहा हो, वो बेईमान हो, लेकिन उसकी इज्जत की जाएगी, उसको शरीफ समझा जाएगा, उसको बुला बुला कर मालाएं उसको पहनाई जाएंगी, उसके चेहरे के ऊपर, सर के ऊपर पगड़ियां बांधी जाएंगी।
آج آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ایسا کیسے ہی تو منظر ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہی تو ماجرا ہے ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر۔ نوا ہے کہ ملک کے وقار اور عظمت کو بھلا دیا جائے گا۔ آج جن عظمتوں پر اور جن شخصیات کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں، کل انہی کا مذاق اڑایا جائے گا۔ جو ہماری عظمتیں ہیں، جو پیچھے گزر چکی ہیں، جنہوں نے ہمارے ملک کو بنانے کے لیے، ہمیں اس حال میں پہنچانے کے لیے اپنے دن رات ایک کر دیے، اپنا خون پسینہ ایک کر دیا، کبھی ایک پل بھی اپنے بارے میں نہیں سوچا، جس کے اندر ہم اکبر الہ آبادی کے زمانے فخر کرتے ہیں، تو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ آنے والے زمانے کے اندر ان کی عظمتوں کو بھلا دیا جائے گا، ان کے وقار کو ختم کر دیا جائے گا، ان کے عظمت جو ہیں صرف کتابوں تک ہی سمٹ کے رہ جائیں گی۔ اور آج وہی حال ہو رہا ہے، ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے کام کرے ہیں، بڑے بڑے حوصلہ افزائی لوگوں کی ہے، ہمت دکھائی ہے، ان کے مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو گالیاں بکی جاتی ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں۔ ساری باتوں کی پیشن گوئیاں اس وقت کے ماحول کے حساب سے کہ کیا ہو رہا ہے اکبر الہ آبادی نے کی تھی۔ تو یہ کچھ پیشن گوئیاں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی پیشن گوئیاں ہیں، آپ کو اپنی نظم سے مستقبل سے دیکھنی ہے کہ ان کے علاوہ آپ کو کون کون سی نظر آتی ہیں۔ آگے آتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب۔ یہ کہتا ہے کہ مغربی تہذیب کو اپنے طنز کا نشانہ کیوں بنایا ہے؟ اکبر الہ آبادی نے مغربی تہذیب کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا ہے، لیکن کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ وہ مغربی تہذیب کی اندھی تقلید کے خلاف تھے۔ مغربی تہذیب ہماری تہذیب سے الگ ہے، وہاں کا رہن سہن، چال چلن، اٹھ بیٹھ کا ڈھنگ الگ ہے، وہاں پر حیا کا نام نہیں ہے، وہاں کا شرم کا نام نہیں ہے، کھلا پن ہے اس تہذیب کے اندر، بدکاریاں ہیں، برے اعمال ہیں، برے فعل ہیں۔ خوشیاں مناتے ہیں تو وہ لوگ شراب پیتے ہیں، غم مناتے ہیں تو وہ لوگ شراب پیتے ہیں، رہن سہن کا انداز ٹھیک نہیں ہے، ماں باپ کی کوئی عزت نہیں ہے ان کی تہذیب کے اندر، کوئی وقار نہیں ہے، ماں باپ کی اپنے بچے کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں سمجھتے اپنے بچوں کو ماں باپ۔ وہاں پر جن باتوں کے لیے ہم یہاں پر بات نہیں کر سکتے، ہم یہاں بولتے نہیں ہیں، وہ باتیں اس معاشرے میں، اس تہذیب میں عام ہیں، عام رواج کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پھر وہ تہذیب کیسے اچھی ہوئی ہماری تہذیب سے، وہ ہماری تہذیب سے کیسے بہتر ہوئی؟ لیکن یہاں کے لوگ اس تہذیب کی پیروی کر رہے تھے، اس کے جیسا بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اکبر الہ آبادی نے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو اس کچرے کے اندر، ان غلطیوں میں، ان خسارے میں کہاں جاتے ہو؟ وہ تہذیب اچھی نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے اس تہذیب کے پر طنز کیے ہیں۔ وہ اسی لیے طنز کیے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے اکبر الہ آبادی کہ اس تہذیب کی ہم تقلید کریں۔ دیکھیے، اکبر الہ آبادی ان لوگوں میں سے تھے جو مغربی تہذیب کی اندھی تقلید کے سخت مخالف تھے۔ انہیں مغربی معاشرے کی حقیقت پتہ تھی۔ مغربی تہذیب صرف دکھاوے کی تہذیب ہے، اس میں کوئی نفاست اور بہتری نہیں ہے، صرف وہ دور سے دیکھنے میں ہی اچھی لگتی ہے، باقی بہت سارے عیوب اس تہذیب کے اندر چھپے ہوئے ہیں، جب ہم قریب جاتے ہیں تو ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔ آئے دن وہاں پر گولی باریاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو مار دیا جاتا ہے، ہلاک کر دیا جاتا ہے، ناحق ستایا جاتا ہے ایک دوسرے کو، اور ہمیں یہاں سے دور سے دیکھنے پر وہ تہذیب اچھی لگتی ہے کہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے سے رہتے ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اسی کو دیکھ کے یہی تو ہے مال و زر کی پرستش کیا ہے؟ وہ صرف بربادی کے راستے پر چلنے والی تہذیب ہے۔ لیکن ہندوستان کے لوگ پھر بھی اس تہذیب کو اپنی تہذیب سے بہتر سمجھ رہے تھے اور اس کی تقلید میں لگے ہوئے تھے۔ اکبر الہ آبادی کی عالمانہ نگاہوں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو مستقبل میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں۔ وہ ان تبدیلیوں سے خوش نہیں تھے، اس لیے انہوں نے بیشتر نظموں میں مغربی تہذیب کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ تھا سوال نمبر 2 کا جواب، جسے آپ کو لکھ لینا ہے۔ آتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ یہاں پر نظم کا ایک مصرع دے رکھا ہے، کھلیں گے اور ہی گل، سے شاعر کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اس میں کہا تھا کہ کھلیں گے اور ہی گل، زمزمے بلبل کے کم ہوں گے، یعنی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو مغربی تہذیب کی اندھی تقلید کی جا رہی ہے، اس کے ذریعے ہم
अच्छा इंसान बनना चाह रहे हैं, पैसे वाला बनना चाह रहे हैं, बड़ी गाड़ियों के शौकीन हम होते जा रहे हैं, बड़े घर हमें वहां उनके जैसे चाहिए। लेकिन अकबर इलाहाबादी कहते हैं तुम इन सब चीजों के लिए जा रहे हो, लेकिन जब तुम बाहर जाओगे, वहां जाओगे, तब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी कि तुम क्या बनना चाह रहे थे और क्या हो जाओगे। और ही गुल तुम्हारे वहां पर खिलेंगे, और ही नजारे तुम्हें नजर आएंगे वहां पर जब जाओगे तो तुम्हें मुआशरे की उनकी गंदगी दिखाई देगी, वहां के दलदल दिखाई देंगे जिसके अंदर तुम फंस जाओगे, और फिर तुम्हें सच्चाई याद आएगी, फिर तुम्हें याद आएंगे कि हिंदुस्तान की तहजीब ही सबसे बेहतर तहजीब है। खिलेंगे और ही गुल से इनकी मुराद ये है कि वहां पर बदकारियां होंगी, बुरे अमाल किए जाएंगे, बुरे फेल होंगे, बुरे काम किए जाएंगे कि जिससे हम बचते हैं आज के जमाने में, वो अच्छे समझ के उनको किए जाएंगे। तो ये कहते हैं कि जैसी उम्मीद तुम कर रहे हो वैसा नहीं होगा, बल्कि और ही तरह के गुल खिलेंगे, और ही तरह के कारनामे अंजाम दिए जाएंगे। खिलेंगे और ही गुल से अकबर इलाहाबादी की मुराद है कि ज़माना मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां होने वाली हैं। उस वक्त हर शख्स के अंदर अंदाज बदल जाएंगे, रहन सहन का, खाने पीने का, चाल चलन बदल जाएगा, रहन सहन का ढंग बदल जाएगा, मुआशरे में शराफत और ईमानदारी की मेयार बदल जाएंगे, अच्छे और ईमानदार लोग कम होंगे और जालिमों की ज्यादती होगी। कि तुम सोच रहे हो कि उस तहजीब से हम तरक्की याफ्ता हो जाएंगे, तरक्की पसंद हो जाएंगे, तो तरक्की पसंद नहीं होने वाले। वो कहते हैं कि और ही गुल खिलेंगे, और वो गुल उन्होंने बदकारियों को बताया है, बुरे अमाल को, बुरे फेल को बताया है। ये था सवाल नंबर 3 का जवाब। आगे आते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। यहां पर गुज़िश्ता अज़मतों के बारे में बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि गुज़िश्ता अज़मतें क्या हैं, चंद जुमलों में तहरीर कीजिए। गुज़िश्ता अज़मतें बच्चों मजहबी एतबार से भी हैं और मुल्की एतबार से भी हैं। हम यहाँ पर मुल्की एतबार से मजहबी अज़मतों की बात करते हैं कि हमारे मुल्क में बादशाह, शहनशाह, बहुत सारी हुकूमतें आई हैं, बहुत सारी सल्तनतें आई हैं, कई तरह की हस्तियां, बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे मुल्क के अंदर पैदा हुई हैं जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, बड़े बड़े मुकाबले किए हैं, बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी हैं कि हम आज सोच भी नहीं सकते कि कोई शख्स अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की आवाम के लिए इस तरह के कारनामे भी अंजाम किया जाता है। तो उन हस्तियों को, उनकी कुर्बानियों को, उनके किस्से कहानियों को गुज़िश्ता अज़मतें कहा गया है, वक़ार की बातें कहा गया है, गुजरी हुई ज़माने की इज्जत और बाइस वाले काम बताए गए हैं कि जो उन्होंने किए हैं, और मुस्तकबिल के अंदर उनको बुला दिया गया है। देखिए, हमारे मुल्क की तारीख अहम शख्सियात और अहम वाक़यात से भरी पड़ी है। बड़ी बड़ी हस्तियां इस मुल्क में पैदा हुई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की रहनुमाई की है और हर तरह के मैदान में अपने जौहर दिखाए हैं। पूरी दुनिया की रहनुमाई करने वाली हस्तियां हमारे यहाँ पर हुई हैं, और किसी एक एरिया में नहीं, किसी एक इलाके में नहीं, हर तरह के जौहर हमारे यहाँ पर दिखाने वाले पैदा हुए हैं। हमारे मुल्क की यही तारीख हमारी गुज़िश्ता अज़मतें हैं। गुज़िश्ता अज़मतें मज़हब से मुताल्लिक भी हैं और मुल्क से मुताल्लिक भी हैं। मज़हब और मुल्क में कई बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, कई कुर्बानियाँ दी गई हैं जिनको हम वक्तन फ़वक्तन याद करते हैं और उन पर फ़ख्र करते हैं। ये अजीम हस्तियाँ, अजीम वाक़यात काबिल एहतराम हैं। ये हमारी गुज़िश्ता अज़मतें हैं जो गुज़र गई हैं, निकल गई हैं, और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे मुल्क में वो हस्तियाँ, वो लोग पैदा हुए कि जिन्होंने इतने बड़े बड़े कारनामे दिए। अगर नाम गिनाने बैठूंगा मैं आपको तो बहुत वक्त हो जाएगा। बहुत सारे नाम हैं कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। चाहे पहली जंग आज़ादी जो 1857 में हुई थी उनकी आप बात कर लीजिए, उस वक्त की कुर्बानी की बात कर लीजिए। जो हमारी जंग आज़ादी हुई 1947 में, जो मुल्क आज़ाद हुआ, जो जिसके अंदर आज़ाद हुआ, जिस तहरीक में, उस तहरीक के अंदर बात करें तो वहाँ भी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं। उससे पहले मुल्क के अंदर भी, मुल्क के बाहर भी मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी गई हैं। जब मुगलिया सल्तनत थी, सल्तनत यहाँ पर चलती थी, दूसरी सल्तनत थी, उस वक्त भी बड़े बड़े कारनामे हुए हैं, बड़े बड़े वाक़यात मंजर आम पर आए हैं कि जिनकी फहरिस्त बनाएं तो बहुत लंबी फहरिस्त बन जाए। तो वो किस्से, कहानियाँ, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनकी शख्सियत के मुज़ाहिरे हम पढ़ते हैं, तज़किरे हम पढ़ते हैं, वो हमारी अज़मतें हैं कि जो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, बाइस एहतराम है। ये था सवाल नंबर 4 का जवाब। आगे आते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब।
नज्म के आखिरी शेर में शायर क्या कहकर खुद को तसल्ली दे रहा है। मक्ते के अंदर शायर कहते हैं कि ज़माने में तब्दीलियाँ होने वाली हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ होने वाली हैं, इनकलाब आने वाले हैं, ज़माना बदलने वाला है, पूरी तरह से बदल जाएगा ज़माना। लेकिन ए अकबर, खुद से कहते हैं वो कि ए अकबर तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम्हारी कोई इतनी लंबी उम्र थोड़ी है, तुम्हारी लंबी ज़िंदगी थोड़ी है, तुम आज हो कल नहीं हो, तुम तो चले जाओगे इस दुनिया को छोड़कर, तुम क्यों ये फिक्र कर रहे हो। तो अपने आप को तसल्ली देते हैं कि वो बदलाव जो होंगे, अभी आज बदलाव नहीं हुए, अकबर इलाहाबादी के ज़माने में बदलाव नहीं हुए, वह शुरुआत हो रही है, लेकिन आने वाले ज़माना जो होगा, तो अकबर तुम फिक्र मत करो कि उस ज़माने में तुम रहोगे नहीं, तुमने ये पेशन गोई कर दी, तुमने बता दिया। अब लोगों के ऊपर है कि वो चाहें तो इस तरह की चीज़ें होने दें और चाहें तो इनको आज ही रोक लें, अपने आप को सुधार लें, अपने आप को राह रास्त पर ले आएं। बाकी तुम्हें कोई फिक्र करने की अकबर, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे, तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है। देखिए इसका जवाब सवाल नंबर 5 का। नज्म के आखिरी शेर में अकबर ये कहकर अपने आप को तसल्ली देते हैं कि ए अकबर, तखल्लुस के अंदर खुद को मुखातिब है, खुद से मुखातिब और कहते हैं कि ए अकबर, ज़माने में आने वाले इनकलाब और तब्दीलियों से डरने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो तब्दीली आ रहे हैं, ये जो बदलाव आ रहे हैं, ये आएंगे आने वाले लोगों के लिए, परेशानी खड़ा करेंगे आने वाले ज़माने के लिए, मुस्तकबिल के लिए परेशानी का सबब बनने वाले हैं। अकबर तुम्हारे लिए परेशानी का सबब नहीं बनेंगे। आने वाले इनकलाब और तब्दीलियों से डरने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो वक्त बहुत नज़दीक है कि हम और तुम फना हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और दुनिया की इन तब्दीलियों को नहीं देख पाएंगे। जो उस वक्त ज़माने के अंदर हैं उनसे ये चीज़ें छूट जाएंगी और नए ज़माने के जो लोग हैं वो उन चीज़ों को देखेंगे। अगर वो उनके मुताबिक हुई तो वो आज के लोगों को, यानी अकबर इलाहाबादी के ज़माने के लोगों को दुआएं देंगे, वरना फिर उम्र भर उनको कोसते रहेंगे कि उस दौर के लोगों ने आज ये हाल कर डाला। तो बच्चों, यही जिम्मेदारी हमारी मुस्तकबिल के लिए भी है कि हम जो आज काम कर रहे हैं उसका असर मुस्तकबिल के ऊपर जाएगा। अच्छे काम हमें करने चाहिए, सुनहरा मुस्तकबिल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना फिर अगर अच्छा हुआ तो हमें दुआएं मिलेंगी मुस्तकबिल के लोगों की, लेकिन अगर ख़राब काम हो गया, हमारे मुल्क के हालात ख़राब हुए, हमारे मुआशरे के ख़राब हालात हुए, कौम की बदहाली हुई, तो आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो फिर हमें माफ़ नहीं करेंगी, हमें बद्दुआएं देती रहेंगी, हमें कोसती रहेंगी कि हमारे पहले आने वाले लोगों ने इस तरह के कारनामे किए कि हमें अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बच्चों सवाल जवाब यहाँ पर मुकम्मल हो गए हैं नज़्म मुस्तकबिल के, और सबक नज़्म मुकम्मल हो गया है। इसी के साथ हमारा अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।